The next session is called The Spearman. He's the Olympic medal hope in a sport where India has never even won an Asian Games gold. From the moment he became the world junior champion, Neeraj Chopra has caught the imagination of the country. And now the 2018 Asian Games gold, apart from romanticizing the sport of javelin, Neeraj Chopra is the new poster boy of Indian athletics. Sitting with him is the man, his coach, Uwe Horn, the only athlete to have thrown the javelin beyond 100 meters. Speaking to them today is actor-director Rahul Bose. In 2017, Rahul directed and produced his second film, Purna, the critically acclaimed biopic of the youngest girl in history to summit Mount Everest. Indian rugby's most recognizable face, Rahul Bose represented India for 11 years, playing 17 internationals from 1998 to 2009, and is now on the board of the Indian Rugby Federation. I'd like to welcome Neeraj Chopra, Uwe Horn, and Rahul Bose onto the stage. Please come. So I have to confess that it's extremely difficult to say no. This is my fourth trip to Bhubaneswar in the last 5 days. It's extremely difficult to say no to the wonderful people at the Odisha State Government Sports Department. We've just had, मैं आपको बताऊं नीरज, we've just had the Asian Rugby Championships for girls under 18 held in Bhubaneswar. And this is a perfect moment for me to actually tell you what a fantastic tournament the sports department of the Odisha State Government organized. The reason why I can tell you this is because we've just received emails from the coaches of Chinese Taipei, Bangladesh, Nepal, China. There were 12 countries participating, Sri Lanka, United Arab Emirates, Hong Kong. And I think out of the 11 emails we've received, the board has received, 8 or 9 emails have said clearly that this was the best organized Asian tournament that they've ever been to. And the sponsors of this tournament were Odisha State Government. It was not that they were doing it because it was in Bhubaneswar. They were the actual sponsors of the tournament. So just before we start, when they said, will you come for the Sports Literary Festival, although there's no sports book that I've written, it was difficult to say no because I owe them a big, big, big thank you. So thank you for having me here. The introductions have been done. There's really no need for me to further those introductions. It's an exciting time for Indian sport. And I thought, along with Neeraj, I'll speak in Hindi. And with Uwe, I will speak to you in English. Right? Would that be okay? If I reverse that, it would be a bit difficult. We would have a very silent session. So, I think what we all want to know from someone like Neeraj, who's just 20. 20 साल के हैं ना? 21 हो गए कि होने वाले हो? कब? December में. आप mic लीजिए ना. So I think what we want to know from someone like Neeraj is how and why something as esoteric and something as non-traditional as the javelin. So let's start there and let's see how we can actually get a sense of his story. नीरज, साधारण सवाल है. सभी को यही शायद आपको सैकड़ों बार किसी ने पूछा है कि शुरुआत हमने देखा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ कहीं और होता है और अंत कहीं और होता है. मतलब कामयाबी कहीं और पे आप हासिल करते हो. कई बार मैंने सुना है कि एक शॉर्ट पट खेलने वाली लड़की आज रग्बी खेल रही है और उस पे उसने बहुत प्रेज हासिल किया है. तो आपका आप चंडीगढ़ के आप पानीपत में जन्म हुए थे, लेकिन चंडीगढ़ में आपने पढ़ाई की? नहीं, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था. अच्छा. तो वहाँ पे कॉलेज शुरुआत किस स्पोर्ट से हुई? स्पोर्ट तो मैंने जो प्रोफेशनली जेवलिन स्टार्ट किया था, लेकिन जो नॉर्मली गांव में हरियाणा में कुश्ती, कबड्डी और ये नॉर्मली गेम है जो खेलते रहते हैं बच्चे. तो जब प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो जेवलिन ही किया था मैंने स्टार्ट. कैसे? क्योंकि हमारे में हम सब एथलेटिक्स करते थे, लेकिन जेवलिन किसी स्कूल में तो सिखाते भी नहीं थे. हाँ जी बिल्कुल. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी जेवलिन के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं ऐसे
फिटनेस के लिए, खाली फिटनेस एक अपना लेवल है जो वो ठीक करने के लिए गया था, और घर वालों ने भी फोर्स किया था उसके लिए। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, वो जेवलिन थ्रोअर थे, तो उनको देख के ही मैंने शुरू किया था। तो करते करते फिर उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की, डिस्ट्रिक्ट में खेला, स्टेट खेला, तो ऐसे ही शुरू होते होते मैं मतलब अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। नहीं, एक चीज होता है कि आप शौक है किसी खेल में, तो उस शौक से आप खेलते रहते हो। कई लोग ऐसे हैं, जैसे आंद्रे आगसी कहते हैं, जो टेनिस प्लेयर थे, कि उसे टेनिस से नफरत था, लेकिन वो खेलता था क्योंकि उसमें उसने कामयाबी हासिल की। इन दोनों में से आपका क्या किस्सा है? जी देखो, मुझे एक मतलब लगाव हो गया था जेवलिन से जब मैंने शुरू किया, क्योंकि हरियाणा में भी और इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है जेवलिन के बारे में। और मैंने जब शुरू किया तो इतना कोई जानता भी नहीं था जेवलिन को। तो जब शुरू किया तो बस एक यही जुनून बन गया उसके पीछे कि ये करना है तो करना है। हाँ, अलग रास्ता ज़रूर था, लेकिन उसमें मेहनत इतनी ज़्यादा की है और लोगों की सुनी भी है, लेकिन फोकस सिर्फ अपना ट्रेनिंग पे ही था। और बस ये था कि जो मैंने अभी ये स्टार्ट किया, इस काम को पूरा करना है। और आज खुशी है कि मेरी वजह से थोड़ा सा इंडिया में लोग जानते हैं जेवलिन को, और वर्ल्ड में भी इंडिया कहीं ना कहीं फ्लैग आता है। Congratulations, yeah, of course. Uwe, what do you look for when you're looking at gauging the potential of a javelin thrower? Let's say the person has never thrown a javelin. Physically, mentally, we know the qualities required to be a champion. But physically, what do you look for to say, yes, this kid has the right biomechanics to be a javelin thrower? Mike's there. Yeah, as coach, you have to look, especially how fast this athlete or this guy learn. Yeah, when I say do this, can he do it, or he need 5 tries or 20 to get close to it. And the second is you need to be fast. Yeah. So, for example, a young athlete don't need to throw a javelin far at the first place. He need to throw a golf ball fast to be explosive. Yeah. You need to be fast on his legs. Yeah. Need to play. Yeah. These agility. Yeah. So yeah. Don't need to throw already good. Yeah. But has some potential on. So from the time that you actually broke the 100 mark and that the javelin changed, I think in the 80s they redesigned the javelin, if I'm not wrong. When did they redesign the javelin? So no one's ever actually come anywhere close to that mark. Yeah, in 1986. 86, right. Started with the So from the time that you were actually an ace javelin thrower to today, have the physical needs, I'll give you an example. In the old days, rugby players could be light and fast. Today, that day is gone. You have to be heavy, strong, and fast as before. So has the model of the perfect athlete to throw the javelin, has that changed, or is it pretty much still the same? I think it's pretty much the same. With the new javelin, you can be a little bit more powerful thrower, like German athletes like Hoffmann or Vetter. They are probably too strong for the old model, which needed more, a little bit more feeling for the javelin to let them fly. Yeah. What you could compare with these days, the 700-gram javelin. At under 18 years, they throw with a little bit similar model as the old javelin. Yeah, which it's gliding more,
but it's not so stable. So you have often to reduce your power to hit the javelin right. For example, I had pretty good throwing power in my time as athlete, probably the best of at this time of everybody. But I could also only use maybe 85% of it to hit the javelin right. Yeah, otherwise he would fall down and not flying nice. नीरज, ठीक है, तो शुरुआत से आपने पानीपत में ही प्रैक्टिस किया था। एक समय पे आप पानीपत से चंडीगढ़ जाते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग कैसा हुआ और उस वक्त आप कौन से टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहे थे? जी देखिए, मैं पानीपत से चंडीगढ़ इसलिए गया था क्योंकि पानीपत में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ और स्टेडियम नहीं था। एक स्टेडियम था शिवाजी स्टेडियम, वहाँ पे फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर और ट्रैक इवेंट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सभी एक ही स्टेडियम में होते थे। तो जेवलिन का क्या है कि काफ़ी रिस्की होता था, क्योंकि हम थ्रो करते थे तो क्या पता कोई एकदम फुटबॉलर आ गया या कोई हॉकी प्लेयर आ गया, तो मतलब मरने का भी डर रहता था, कभी कोई हाथ से मौत ना हो जाए यार। तो फिर वहाँ पे छोड़ के फिर हम चंडीगढ़ गए। तो एक सीनियर ने सलाह दी थी कि चंडीगढ़ में एक अच्छा नर्सरी है, वहाँ पे हॉस्टल है, अच्छा स्टेडियम है। तो मैं वहाँ पे गया, तो इसीलिए गया था कि कुछ अच्छी फैसिलिटी मिले। तो वहाँ पे मैं नेशनल लेवल के एथलीट से मिला, तो वहाँ पे जाने के बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ा एक स्पोर्ट्स में मेरे। आपकी उम्र कितनी थी इस वक्त? उस टाइम मैं 15 साल तक का था। तो 15 से कितने साल आप वहाँ पे बिताए? मैंने वहाँ पे 3-4 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद 2015 में नेशनल गेम्स होने के बाद मेरा पटियाला नेशनल कैंप में जो है सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद ही एक जो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे एक स्पोर्ट्स लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे एक जो मैंने देखा था कि बहुत अच्छे एथलीट हर गेम के, बॉक्सिंग के भी, वेट लिफ्टर भी वहाँ पे थे, और हमारे एथलेटिक्स के जैसे कृष्णा पुनिया, सीमान तिल और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने मतलब एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में भी मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड थे। तो वहाँ पे उनको देख के एक जो मोटिवेट मिलता है अपने सीनियर एथलीट को देख के, तो वो मोटिवेट वहाँ पे आया। तो वहाँ उसके बाद जो है मेरा थोड़ा जो डिस्टेंस था उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, और जो एक इंटरनेशनल गेम्स होते हैं वहाँ पे भी डिस्टेंस का काफ़ी वही रीज़न था कि वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिला। सीनियर ने काफ़ी हमको मोटिवेट किया, और जो हर तरह की फैसिलिटी है वो भी वहाँ पे मिली जी। तो NIS पटियाला वाज द टर्निंग पॉइंट। आपको लगता है कि वहाँ पे यू रियली बिगैन टू पुश? ठीक है, वहाँ पे कितना समय आपने बिताया? अभी तो वहीं पे हैं जी, लेकिन एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ से पहले, अभी मैं कॉमनवेल्थ से पहले थोड़े दिन यूरोप में ट्रेनिंग की थी, और एशियन गेम्स से पहले हम फिनलैंड में थे। तो बिल्कुल फिनलैंड का और जर्मनी का काफ़ी अच्छा जो है जेवलिन का शुरुआत से ही काफ़ी नाम रहा है जेवलिन में। सबसे आपको बेहतर कहाँ पे लगेगा कि अगर आपको कोई पूछे नीरज वेयर डू यू वांट टू ट्रेन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप कहाँ जाओगे? जी देखिए, अगर ट्रेनिंग के लिए बेस्ट तो फिनलैंड है, क्योंकि वहाँ पे एक जेवलिन थ्रो का जो एक स्टैंडर्ड है, जैसे अपने यहाँ पे आप लगा लो कि जैसे क्रिकेट को ज़्यादा होता है, वहाँ पे जेवलिन का इतना ही ज़्यादा एक क्रेज़ है कि वहाँ पे हर फैसिलिटी जेवलिन थ्रोअर्स के लिए वो मिल जाती हैं। लेकिन सर्दियों में वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि जम जाएंगे, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। तो आप ऊवर से कब मिले? मैं अभी कॉमनवेल्थ से पहले मिला था, कॉमनवेल्थ गेम से पहले। अच्छा, और आपको किसने मिलाया, किसने कहा कि इनसे मिलिए? हमारी जो फेडरेशन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और साई टॉप्स जो पूरा देखते हैं, तो उन्होंने सर से कॉन्टैक्ट किया और इंडिया में आए। तो हाँ जी, फेडरेशन ने इनको बुलाया था, और मैं जब पटियाला गया तो पटियाला सर बाकी जेवलिन थ्रोस को ट्रेनिंग करवा रहे थे नेशनल कैंप में, तो वहीं पे मैं इनसे मिला और वहीं पे मैंने इनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो कॉमनवेल्थ के पहले से मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है इनके साथ? I'm asking him how he likes to be coached by you, and I'll ask you the same question after this. जी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम थके भी होते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा आज, तो जाके थोड़ा सा ऐसे लगड़ाते हुए जाते हैं, लेकिन जाते बोलते हैं नहीं ये पूरा वर्कआउट करना है। तो वो कोच में वो होनी ज़रूरी है जी, दया की भावना नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो वो बहुत अच्छी है कि भाई बहुत हार्ड वर्कआउट करवाते हैं। Uwe, he says you have no mercy. So he comes to you in 2016,
15? Only last, Oh. this year in February. So 18. 18 in Right. February he came to me. And Yes. how has it been ever since working with him? Yeah, pretty good. From begin in February, he came from Germany for. He went to Germany for 3 months and came back in good conditions. And then we started to make a concept for this year to prepare the Commonwealth and Asian Games. And this year was pretty short time to prepare both major competition. So we said we don't change too much on technique, only a little bit. So we turned here a little bit and there a little bit, and concentrate more on his fitness and health. Yeah, like you maybe know, he had last year in 2017 some problems with elbow, with adductors. So we try to fix these things to strengthen adductor and core. And in technique to lift the arm a little bit to get less stress on the elbow. I asked him the same question. I'm going to ask you the same one too. If you had your way, where should he train permanently? If you had your way, which part of the world, where would you like him to train permanently? Permanent. Well, not permanent, but you know, Yeah, for long term. but most of the time not in India, because I know only Patiala. As I arrived 1 year ago, they told me Patiala, it's the best place to stay, the best center. And I say now, or from the first moment I saw this, that can't be, that the best is what India has. They have a lot of talent sports and good success in other sports, so yeah. So our plan is to go as much as possible out of the country to Germany. We have some camps in South Africa. And Neeraj was talking about Finland. yeah, we was in Finland. Finland was also a good place for training with good facilities, good accommodation, and good quiet place. But in the next 2 years, we like also to compete more, and this place, it's too far away from any airport, yeah, over 4 hours, and that's not possible. Yeah, not an option for this year. So, Neeraj, अब लीडिंग अप टू 2020 आपके प्लान्स क्या हैं, कहाँ पे रहोगे ट्रेनिंग के लिए, और कौन कौन से मीट्स के लिए आप जाना चाहते हो अगले 18 महीनों में? जी देखिए, प्लान तो कोच का ही है कि भाई कहीं पे भी हम साउथ अफ्रीका जाएंगे या बीच में यूरोप में भी हमारे कैंप लगेंगे। तो उसके बीच में कॉम्पिटिशन्स और भी काफ़ी ज़रूरी हैं, जैसे अगले साल एशियन चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है अगले साल, और हमारे डायमंड लीग है जो वो भी चलते रहते हैं। तो डायमंड लीग भी काफ़ी एक बड़े गेम है, हमारे यहाँ पे इतना जानते नहीं हैं क्योंकि इंडियन एथलीट्स हैं तो उसमें इतना पार्ट नहीं लेते हैं। उसमें वर्ल्ड के टॉप या टॉप 10 जो हैं एथलीट आते हैं, बस उनको एंट्री मिलती है, बाकी एंट्री नहीं मिलती। तो वो और ये टोटल मिला के तो कम से कम ओलंपिक से पहले 20 कंपटीशन तक हो जाएंगे। और ओलंपिक्स में तुम्हारी ख्वाहिश? जी ख्वाहिश तो कुछ नहीं है, बस अपने अंदर से ही जो है उसको ही जगाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो ट्रेनिंग करके हम अपने आप को उस लेवल का बनाएंगे और अपनी मेहनत से कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से मेडल लेके आएँ और ट्राई गोल्ड की करेंगे।
Uwe, this country is slowly getting obsessed with medals. I think it's also emblematic of the way we have begun to structure our lives and how we define success. It's no more about personal happiness, it's more about what it looks like on the outside. That's more important than what happens on the inside. So putting the medals aside, what honestly do you think would be a best case scenario, in your opinion, leading up to the Olympics, so that it's more important, I think, for the world to understand that if a sports person puts up his or her personal best, it's a big thing. It's a huge thing. And it's something that means that you're always moving ahead. If you regress, certainly it's a bad thing. But in these 18 months leading up to the Olympics and the Olympics itself, what do you think are realistic milestones that you would be happy if Neeraj achieved? Yeah, for the next year, that's one major thing in the preparation for Tokyo, to lift up the level, an average to throw 3-4 meters more than this year. He threw 88. constant 85, so say 88 in average, and then should be also possible to throw 92 maybe, which is our target. And if it's a little bit further, even better. But it's only a step forward to Tokyo, and there are also some guys in the world, Czech and German guys. There are also maybe some Finns, young guys coming. So you have to have this level to be a good contender in Tokyo. So you have to be in the 90s, in the low 90s to hope to medal, or in the middle and high 90s? We will see. No, generally, forget about Neeraj. I think you have to have the potential to throw 94 to get a medal. Not to throw this in Tokyo, but yeah, the ability. Do things change during competition? Because there is a person training alone without any pressure, and whether it's golf or whether it's javelin throwing, it's when you're alone. And then there's competition, which is not necessarily against each other, but you know that there are rounds happening. What does pressure do, in your opinion, when you were playing, when you were throwing the javelin? Did you react positively to pressure, or did you feel that your personal bests were always outside of tournaments? No, actually, I threw often in competition much better. The only really problem I had was my last competition I ever had in Canberra, the World Cup in 1985, where I first really struggled. Was not easy conditions, but more the pressure somebody else put out on me. Yeah, I was the first time team captain. I was competing on the last day. Yeah, and started also that my personal coach was not there, and everybody else told me what I have to do, and was way off of what I like to do. And leading up to the competition, Petra Velke also struggled and didn't win, so they even put more pressure on me. And the competition went so that I had
5 throws, only quite bad. I still won, and only as I won the last one, I was a bit relaxed about this, and then I threw almost 8 meters further, yeah, with 96, not too bad result. नीरज, आपको वही सवाल, आपको ट्रेनिंग में लगता है कि आप बेहतरीन करते हो कि कंपटीशन के जुनून में आप और भी बेहतर करते हो? नहीं, मैं कंपटीशन के जुनून में बहुत अच्छा करता हूँ जी। और वहाँ पे जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से जैसे आपने कहा लगता है कि आप और भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उस प्रेशर से आप थोड़ा सा दब गए? नहीं, अब तो मतलब 7-8 साल हो गए हैं जेवलिन करते हुए, तो अभी इतना प्रेशर नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ा बहुत ले लेता, नहीं अभी तो जो है अच्छे से मोटिवेट होकर अपने आप पे विश्वास करके ही जाते हैं कंपटीशन में, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग की है और लास्ट में हम प्रेशर की वजह से अपने आप को वहाँ पे अच्छा नहीं दिखा पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सब चीज़ें छोड़ के, प्रेशर है कुछ भी है, अपना जितनी ट्रेनिंग की है अपना 100% वहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जो है मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी टफ होता है, और जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कि मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ। और देश में परफॉर्म करना और देश के बाहर परफॉर्म करना, बहुत से खिलाड़ी कहते हैं कि देश में परफॉर्म करना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी प्रेशर से दब जाते हैं, और जब बाहर होते हैं तो बिल्कुल आज़ादी से खेल सकते हैं। ये क्या आपके साथ होता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, अभी तो क्योंकि वो जब होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, किसी के हमारे ऊपर नज़र नहीं है, तब हम फ्री माइंड खेल सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे एशियन गेम्स में है, फ्लैग बेरर बनने का मौका मिला मुझे, और सभी की नज़र थी कि नीरज को देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे सबकी नज़र होती है जी। वहाँ पे हम ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं फ्री माइंड खेल लूँगा, परफॉर्म ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप ऊपर विश्वास करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन खेलने पड़ेंगे, और भी ज़्यादा, ताकि हम एक लेवल अपना जो है परफॉर्मेंस का वो बना सके। तो इस बार ये काफ़ी अच्छी बात रही कि हर कॉम्पिटिशन में मेरी 85 से प्लस थ्रो रही, तो इसलिए इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि हाँ एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आऊँगा। Okay, so this timer hasn't moved from 0:00:00:00. I was told that this was going to be a 25-minute chat and then 10 minutes for Q&A. Is anyone keeping track of the time? Ready to go for the audience? Right, questions for Neeraj and Uva? Yes, please. Whoever has the mic, I guess, right? The mic has to go to... हाय नीरज, राम राम भाई। राम राम जी। मैंने आपकी एक बार चाचा से बात की थी, उन्होंने बोला था कि मतलब जैवलिन से हटके थोड़ा क्वेश्चन है कि आप कभी डरते नहीं हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट एक टाइम ऐसा था जब आपको लगा कि आज बच गए, बहुत अच्छा हुआ। वो फ्लाइट थी एक जिसमें काफ़ी ख़राब वेदर से तो आप मुझे उसके बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे बस इतना बताया कि मैं आज बच गया, मैं बहुत खुश हूँ। जी देखिए जी, वो फ्लाइट का क्या था कि हम जर्मनी जा रहे थे, तो अबू धाबी से हमने फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट ली थी। तो वो क्या हुआ था कि 10-15 सेकंड के लिए एकदम लाइट्स ऑफ हो गई थी, और मतलब बिल्कुल फ्लाइट ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पीड से नीचे जा रही है। तो मैं हेडफोन लगा रहा था, तो मैंने जैसे हेडफोन हटाए तो लोग रो रहे हैं, कोई चिल्लियाँ मार रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। तो मैं बोला, साथ में मेरे फिजियो बैठे थे कि यार चिल्लाने से क्या होगा, ये जानिए तो जाएगी नीचे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो हुई थी हमारे साथ। Yeah, Neeraj, congratulations, Neeraj. थैंक यू सर। With age on your side, and with a man who broke 100 meters, 104 meters with javelin, in this modern technology of javelin, can you break 100 meters mark? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी खुशी है कि ये हमारे कोच हैं, और एक अकेले ऐसे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे आदमी है जिन्होंने 100 मीटर से ऊपर थ्रो किया है। आज तक सभी का सपना है वो करने का। तो बिल्कुल कोच को ट्रस्ट है, और मैं भी अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। तो पूरी कोशिश है जी कि मैं वर्ल्ड लेवल का परफॉर्म करूँगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अपनी परफॉर्मेंस लेके जाऊँगा। Good afternoon, sir. Sir, here. हेलो भाई। Yeah.
I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that. There's भाई a हेलो, level- हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर. हिंदी में पूछ लो यार। सर आपके गेम्स में से बहुत सारी सिचुएशंस आते होंगे, मतलब एक लेवल तक आप खेलते हो, उसके ऊपर और आप नहीं जा पा रहे. ऐसा हर गेम में होता है, हर प्लेयर के साथ होता है, उसका एक लेवल सेट हो जाता है और सर उसी टाइम पे मतलब आपको एक फ्रस्ट्रेटेड फील होता है. सो सर उस टाइम आप ऐसा मतलब क्या अपने आप को कैसे कोप अप करते हो उस सिचुएशन के साथ और फ्रस्ट्रेशन को कैसे मिटाते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा आता है एक बार कि भाई हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अटक जाता है और हम कितनी भी ट्रेनिंग कर ले तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इंजरी, जो इंजरी है जो खिलाड़ी की लाइफ में सबसे ज़्यादा रुकावट लेके आती है. तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंजरी ना आने दें, थोड़ा सा इंजरी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इंजरी एक बार आ जाती है तो वही परफॉर्म लेके आने के लिए हमको कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं. तो हाँ बिल्कुल कभी कभी होता है, लेकिन वही है कि अपने आप पे ट्रस्ट करके रखो और ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो वो परफॉर्म भी बेटर हो जाएगा. गुड इवनिंग नीरज. लास्ट ईयर पिछले साल तो एशियन एथलेटिक्स हुआ था, इतना बारिश हो रहा था, उस समय भी आप इतना अच्छा परफॉर्म किए. आप भुवनेश्वर फैंस के बारे में कुछ बोलिए. जी बिल्कुल, मैं ये बात खुद भी बोलने वाला था, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया. कि पिछले साल एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, मैंने पहली बार इंडिया में इतना जो है एक एथलेटिक्स के लिए क्रेज देखा है जितना भुवनेश्वर में था. हेलो. तो क्या था कि मतलब टिकटें बेच रहे थे, मतलब ब्लैक में भी करी शायद बार, है ना, तो लोग है ना खड़े होके भी कोई आके ग्राउंड में आते हुए भी देख रहा था. तो इतना क्रेज मैंने पहली बार देखा था, तो ये होना बहुत ज़रूरी था. हेलो, हाय नीरज. एक ये सवाल आपके लिए भी है एंड आई विल आस्क इन इंग्लिश टू योर कोच एज वेल कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98 मीटर्स, आप सोचते हैं यू कैन बीट दैट वन डे? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस एज के हिसाब से और जैसे मतलब परफॉर्मेंस चल रही है, तो हाँ जी बिल्कुल एक लग रहा है कि हाँ. एंड टू योर कोच सर, यू थ्रू 104 meters with the old javelin which was heavier I guess from the new javelin which with Jan Zelensky broke the world record at 98 meters. What do you think? You think you are a better thrower than him or you consider yourself the better जी one? बिल्कुल, ये मेरे से बेटर थे. इन्होंने 104 मीटर फेंका और मैं अभी 88 पे हूँ, तो वो तो जेंजलेजनी. ओके, वो आप इनसे पूछ लें. Yeah, I think these javelins we can't really compare. The only thing we can compare is release speed, and that's pretty much the same at his world record and my. I think, or I said also, as I threw the world record in 1948, that I think I can throw further. I had not really a chance to throw further. There was only one year time, and there was a lot of pressure to show and to show that I can throw further. And I had not really the right conditions. Even I was stronger in 1985, but I still was only 23 as I did my last competition. So yeah, you can't really compare this. Ajinkya has a question. एक क्वेश्चन आपसे है. आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे होता है, या आप कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को? और एक था कि आप ट्रेनिंग जब करते हो या प्रिपरेशन होते हैं, आपका डाइट क्या होता है? जी देखिए, ट्रेनिंग प्लान पूरा कोच का होता है, और डाइट जो हमारी जैसे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो सभी एथलीट्स के लिए सेम होती है. तो वो वही डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या डाइट है, तो वो नेशनल कैंप्स में सभी को सेम मिलती है. बाकी का जो हम एक्स्ट्रा अगर हमको कुछ खाना है या वो अपने पैसे से लेना पड़ता है. अरे नीरज, क्या ट्रेनिंग क्या खाना, कुछ तो बताइए. वो ट्रेनिंग वैसे ही होता है और खाना वैसे ही होता है, मतलब क्या, हमें बताइए ना. आप एक दिन में आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जब टूर्नामेंट नहीं हो रहा है,
फर्ज करो टूर्नामेंट 3 महीने बाद में है, हर रोज आपका शेड्यूल क्या होता है, कब उठते हो, क्या ट्रेनिंग करते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, कुछ तो बताइए यार। जी देखिए, जब ट्रेनिंग काफ़ी दिन होते हैं, जैसे अभी कोई कंपटीशन नहीं हमारा 4-5 महीने तक, तो सुबह 7 बजे या 7:30 तक हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है। तो 3-3.5 घंटे जो है ट्रेनिंग चलती है। उसमें सभी जो रनिंग और जंपिंग, वेट लिफ्टिंग सभी मिला के, मतलब टोटल एक जेवलिन का कई सोचते हैं कि सिर्फ हम थ्रो ही करते रहते हैं, तो वो नहीं है। वो हमें हर चीज़, जैसे जंप भी, वेट लिफ्टिंग भी और स्प्रिंट भी, हर चीज़ अपना फिटनेस लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये है कि सुबह 3 से 3.5 घंटे और शाम को भी 3.5-4 घंटे तक की ट्रेनिंग होती है। खाने में जी मैंने नॉन वेज भी शुरू कर रखा है अभी। नॉन वेज क्यों शुरू किया था, मैं 2016 में यूरोप में गया था, पोलैंड में हमारा नेशनल कैंप लगा था। वहाँ पे पूरी जो नेशनल जेवलिन टीम है वो वहाँ पे गई थी रियो से पहले। तो वहाँ पे पूरी डाइट क्या थी कि घास फूस, फ्रूट ये सब वहाँ पे, हाँ चीज़, ब्रेड, ये मिल रहा था। तो मतलब एक वेजिटेरियन के लिए तो ये काफ़ी मतलब वो हो जाता है कि वो ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती थी। तो क्या हुआ कि 5-6 किलो वेट जो है मेरा वहाँ पे टूट गया। तो फिर सीनियर बोले कि भाई ऐसे तो मर जाएगा, तो कुछ खा लिया कर। तो फिर मैंने नॉन वेज स्टार्ट किया था। हेलो जी, नीरज जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से जेवलिन में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। और मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे कि आपका हेयर कट देख के, ये थोड़ा इरेलेवेंट है, मतलब जेवलिन से हट के है, आपका हेयर कट देख के लगता है कि पुराने जो क्रिश की, ऋतिक रोशन की याद आती है। एंड आप, भगवान ने आपको इतना अच्छा एक फिगर एंड ऑल दिया हुआ है, तो आपको कभी भविष्य में अगर बॉलीवुड में आने का मौका मिलेगा तो आप आओगे? देखो जी, उसके लिए एक्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग मेरी इतनी नहीं, उतनी ज़रूरी नहीं है। नहीं सर, एक्टिंग ज़रूरी है। एक्टिंग, एक्टर का नाम इसलिए कि एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो अभी तक नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स में अभी तक तो स्पोर्ट्स का ही है। Hi, Uva, it's Madeline from Australia. I used to run 800 metres and actually trained with Catherine Mitchell for a couple of years. So hi, nice to see you again. I actually have a question for you about what you've learned from Catherine Mitchell's experiences in the last couple of years, where Catherine has gone on to become the Commonwealth champion and just seems to throw further every year, even though Athletics Australia keeps identifying her as the oldest athlete on the team. So you now have Niraj, very young athlete. What lessons are you bringing from your experiences with Catherine to help Niraj as a young athlete now? One important point, it's in general, not only from Catherine, but to work over the years with so many athletes and sometimes also with federations. When I started with a lot of athletes like Catherine, like Qingang Chao from China, or also here in India, there was always some health problems. If it's here, the elbow or adductor was in China, the shoulder, and in first place to get the athletes healthy and to prepare for good training quality and training amount without to get injured. And special from the last year with Catherine and working with a sport psychologist from the VIS in Melbourne who identified that she had she overtrained and
little bit burnt out, or not little bit, pretty much very burnt out. And sometimes it's less better than more. Yeah, that's a very important part. The level of training amount and recovery and rest need to be very good. And I think Neeraj is also an athlete who needs a lot of rest. Yeah. Okay, organizers, how much time do we have? 2 questions. Okay, so in the interest of gender justice, let's have a woman, another woman, because we had 18 men. 1 woman, 1 man. Okay? Done. Please. Yeah, my question is for both Uwe and Neeraj. Neeraj, आपके लिए सवाल है, जब आप javelin फेंकते हैं तो आपको तकलीफ होती है जब, क्योंकि आपके बाल काफ़ी लंबे हैं, तो छोटा कराने का कभी सोचा है? And Uwe, because Neeraj has a very long hair, have you ever advised him to go for shorter hair because it might hinder in his throw? No. I thought even he looked better with longer hair, but हाँ जी, देखिए ट्रेनिंग में प्रॉब्लम करते हैं लंबे बाल, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही मुझे आदत है लंबे बाल रखने की, तो ऐसा मैं कोई स्टाइल के लिए नहीं रखता हूँ, मुझे बस ठीक है, अच्छे लगते हैं। छोटे बाल है जो मेरे काफ़ी खड़े रहते हैं ऐसे, तो मैं लंबे बाल रखना बिल्कुल नहीं, तुम स्टाइल के लिए रखते हो। Hello, sir. This is Amey Chand. No. Sir, my question to respected coach. Okay, I've lost control of this. Sir, what is the message for the young javeliners, those who are cruising for this one of the greatest event in athletics? It's not so easy. What I said before, that for young athletes, it's not necessary to throw and lift only. It's more that they should do athletic training, yeah, like a decathlon. That's important. Yeah, you have to improve speed and agility and coordination in early age. You can get the feeling for javelin also later, and especially the power. You don't need much power to throw 70 meters or 80 meters. Yeah, it's, I think, also overrated, especially in javelin, because of athletes like Johannes Vetter. He posted also a lot what he is doing in the lifting room, and everybody think he has to be strong. But no, he has to be fast. I had one athlete from Poland. He threw almost 80 meters, but wasn't able to snatch 60 kilos. Yeah? But he was extreme fast. That's important. Okay, last question. Yes, sir. तो नीरज जी, मेरा सवाल ये है कि 90 मीटर टच करने के लिए आपका कोई स्पेशल प्लान है और आपका डेडलाइन कुछ आपने सेट किया है कि किस टूर्नामेंट में आप 90 मीटर टच करना चाहेंगे? जी देखिए, 90 मीटर टच होने के लिए मैं मतलब एशियन गेम्स में भी 90 मीटर से ऊपर थ्रो हो सकता था। थोड़ा सा जो है टेक्निक के ऊपर मुझे काम करना है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो कोच के साथ मिलकर हम वो ठीक कर रहे हैं। और इस चीज़ का कोई मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ कि मुझे 90 मीटर करना है, पर मैं हाँ जी इस साल अगले साल जो आ रहा है तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी 90 मीटर का, जो वो मेरा भी एक सपना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, ladies and gentlemen. थैंक यू।